تشریف لا رہی ہیں آج کی میری پہلی مہمان بجلی. تشریف رکھیے. ارے مجھے ہاتھ مت لگائیے گا ورنہ فوت ہو جائیے گا. بہت شکایتیں ہیں لوگوں کو آپ سے. چھوڑے انور صاحب، یہ بہت پرانی بات ہے، کوئی نئی بات چھیڑ لی. نہیں مگر شکایتیں صحیح ہیں. یہ شکایت ہے نا آپ لوگوں کو کہ میں بغیر بتائے ہوئے چلی جاتی ہوں. جی ہاں. تو اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں کس قدر پریشان ہوں، کتنی دکھی زندگی گزار رہی ہوں میں. آپ پریشان کیوں ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہو؟ یہ دراصل پرسوں میں گر گئی تھی. چوٹ تو نہیں آئی آپ کے؟ جی نہیں، مجھے تو نہیں آئی، البتہ جن صاحب پر میں گری تھی ان کا کباڑا ہو گیا. اچھا یہ بتائیں آپ پریشان کیوں؟ آپ تو جانتے ہیں میری امی کو. امی کارپوریشن جو ہیں؟ جی ہاں. جی جی. ان میں اور میرے ابا میں سیپریشن ہو گئی. آپ کے ابا؟ میرے ابا ہے نا چودھری وابڈا. چودھری وابڈا آپ کے والد ہیں؟ جی ہاں. تو کیوں الگ ہو گئے وہ لوگ؟ دراصل ابا وابڈا امی کارپوریشن سے روزانہ پیسے کا حساب مانگتے تھے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں جب آمدنی میں اضافہ ہو تو گھریلو زندگی تلخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابا وابڈا یہ سمجھتے تھے کہ امی کارپوریشن تمام روپیہ مجھ پر خرچ کر دیتی ہیں، اسی لیے وہ میرے اس قدر خلاف ہو گئے کہ انہوں نے ٹی وی پر میرے خلاف اپیلیں کرنا شروع کر دی کہ بجلی کو بند کیا جائے، بجلی ایسی ہے، بجلی ویسی ہے. آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا. اور امی کارپوریشن کا بھی حساب نرالا ہی ہے. ویسے انہوں نے ایک کمپیوٹر کو نوکر رکھا جو 2-3 دن رہا اور چوری کر کے بھاگ گیا. اچھا یہ بتائیں آپ کی امی کارپوریشن کا حساب کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو روز حساب ہی ٹھیک ہوگا. اب کچھ شکایتوں پہ بات کر لیں. چلیے آئیے شکایتوں کی طرف. بجلی امیروں کو آپ سے اتنی شکایتیں نہیں ہیں جتنی غریبوں کو. دراصل انور صاحب میں بیچاری ایک لاکھوں گھر. اب آپ کا جو شہر کراچی ہے میں وہاں کس کس کو پورا کروں؟ یہاں کارخانے بھی ہیں، سوسائٹیاں بھی ہیں، تنگ و تاریک محلے بھی ہیں اور کوارٹر بھی ہیں. ویسے سوسائٹیاں مجھے زیادہ پسند ہیں جی، اس لیے کہ وہاں آرام بہت ہے. اب آپ سے جو کوئی پوچھے کہ بھائی تم ڈیفینس سوسائٹی میں رہو گے یا گولی مار میں، تو آپ تو جائیں گے نا ڈیفینس سوسائٹی میں. نہیں آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر بجلی بات یہ ہے کہ امیروں سے زیادہ ایمانداری کے ساتھ آپ کا بل بیچارے غریب جمع کرتے ہیں. جی ہاں، یہ بات تو میں مانتی ہوں، اور اس چیز کا بھی میں اقرار کرتی ہوں کہ ہمارے خاندان والوں کی نیت بہت خراب ہے. ہمیشہ میری امی کارپوریشن کو غلط ریڈنگ پہنچاتے ہیں وہ لوگ. جی. خیر وہ تو انسان ہیں، جی. انہیں معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کے یہاں تو 3-4 کمپیوٹر بھی ایسے ہیں جو بے ایمانی کرتے ہوئے باز نہیں آتے. 1000 روپے کا بل ہوگا تو 1500 بتائیں گے، 400 اپنی جیب میں، 100 روپے چلانے والے کو. اوپر سے الزام دیا جاتا ہے کہ بجلی ایسی ہے، بجلی ویسی ہے، بجلی بہت خراب ہے. کیا بتاؤں آپ کو میرے بارے میں کس کس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے. مگر زیادہ تر لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ آپ کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں. جی نہیں، میرے سامنے بھی بہت کچھ کہتے ہیں. ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، ناظم آباد میں ایک صاحب نے اپنے اوپر والے ہمسائے سے آواز دے کر پوچھا، اے بھائی تمہارے یہاں بجلی ہے گئی؟ اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ آرام سے بتا دیتے کہ بھئی ہاں بجلی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. مگر پتا انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ کیا کہا؟ کہنے لگے 15 منٹ سے آنکھیں جھپکا رہی ہے، نہ جانے کب دفان ہو جائے کم بخت. ایسی باتیں اپنے بارے میں سن کر میں وہاں رہ سکتی ہوں؟ مجھے جانا ہی پڑتا ہے. لیکن خیر ایسا بدلہ اتارا میں نے کہ وہ بھی کیا یاد رکھیں گے. کیا کیا آپ نے؟ اگلے دن ٹھنڈا پانی پینے کے لیے فریج کھولا انہوں نے، ایسا کرنٹ مارا میں نے کہ 3 دن تک تڑپتے رہے ہوں گے. یہ بتائیں بجلی آپ کو کوئی برا لگتا ہے؟ جی ہاں، مجھے بلب بہت برے لگتے ہیں. بلب؟ وہ کیوں؟ مجھ سے جلتے ہیں نا سب. انسانوں میں آپ کو کون برا لگتا ہے؟ انسانوں میں مجھے وہ لوگ زہر کا گولا لگتے ہیں جو میری موجودگی میں بھی موم بتی جلاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت میں بلا کر کھانا کھلاتے ہیں. وہ بیچارے کیوں برے لگتے ہیں آپ کو؟ اس لیے کہ وہ لوگ نقلی ہوتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھتی ہیں؟ جی ہاں، بہت کم. کون سے پروگرام پسند ہیں آپ کو؟ مجھے زیادہ تر کرنٹ افیئر کے پروگرام پسند ہیں. اچھا ایک بتائیں کہ آپ کے خاندان میں آپ کو کون پسند ہے؟ مجھے پھوپھی اماں سے بہت محبت ہے. پھوپھی اماں ہیں آپ کی؟ جی ہاں، لالٹین. لالٹین آپ کی پھوپھی ہیں؟ جی ہاں، بہت قابل خاتون ہے وہ. ہمارے یہاں کے تمام بچوں نے انہی سے جلنا سیکھا، اور آپ کے بھی کئی صحافی، شعراء اور ادیبوں نے انہی کے زیر سایہ تعلیم پائی ہے. انتہائی قابل خاتون ہے وہ. آپ کو معلوم ہے میرے اگلے مہمان کون ہیں؟ ارے چھوڑیے انور صاحب، ہمیں اس سے کیا تعلق کہ آپ کیا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ہمیں تو اپنے جانے سے تعلق ہے. ابھی چلی جاؤں گی، سب بتیاں گل ہو جائیں گی آپ کی. میرے اگلے مہمان ہیں پانی. ارے پانی کہاں ہے وہ بدماش؟ وہ تو 4 دن سے بند تھا. بند ضرور تھے مگر میرے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے انہیں خاص طور سے چھوڑا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ کیوں بند تھا؟ ارے کسی علاقے میں موجے مار رہا ہوگا.
आप जानती हैं इसको? जी हाँ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से है वो। और अम्मी कॉर्पोरेशन और अब्बा बाबडा के तो सर पे से भी गुजर चुका। पानी? हाँ, मैंने बताया ना, बहुत शैतान है वो। मेरे आज के अगले मेहमान हैं पानी। तशरीफ ला रहे हैं पानी। बिजली, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। कब से हो यहाँ? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया तुम्हें बगैर गए हुए? यकीन नहीं आता, झूठी। तुम कह रहे हो? तुम खुद भी तो गायब हो जाते हो। अरे मैं आता ही कब हूँ जो गायब हो जाता हूँ। पानी जी। हमारे यहाँ आपसे लोगों को बहुत शिकायत है कि आप मगरूर हो गए हैं, गरीबों के क्वार्टरों में नहीं जाते। ये दुरुस्त है कि हम मगरूर हो गए हैं, मगर हमारा दिमाग खराब करने में आप लोगों का हाथ है। क्या मतलब आपका? बात यह है कि अब हम उन लोगों के यहाँ जाते हैं जिनके कनेक्शंस होते हैं। मगर पानी, आपके कनेक्शन तो हर घर में मौजूद हैं। अजी, इनका मतलब है केडीए या केएमसी में कनेक्शन। अच्छा, आपको मालूम है पानी कि हमारे यहाँ कितने लोग प्यासे मर जाते हैं? ये आप गलत कह रहे हैं कि लोग प्यासे मर जाते हैं। प्यासा कोई नहीं मरता। ये आप किस तरह कह सकते हैं? ये मैं इस तरह कह सकता हूँ कि अब आप लोग बदनीयत हो गए। जिस चीज को आप देखते हैं तो आपके मुंह में पानी भर आता है, और जिस शख्स के मुंह में पानी भर आता है वो कभी प्यासा नहीं मरता। ये बताएं। बात यह है अनवर साहब कि आपके शहर में मेरी हैसियत एक थाली के बैंगन की सी है। जिस तरफ आप लुढ़काएंगे मैं उसी तरफ लुढ़क जाऊंगा। इस शहर में होटल, बड़े बड़े मोहल्ले, और इसी शहर में बेचारे गरीबों के क्वार्टर्स हैं। अब आप ही बताएं मैं किधर किधर जाऊं? यही तो मैं भी कहती हूँ, मगर यहाँ है कौन जो मेरी सुने? अच्छा, ये बताएं पानी कि आप इतनी शिकायतें सुनते हैं, कभी आप शर्मिंदा हुए? शिकायतों पर तो नहीं, अलबत्ता हम शर्मिंदा बहुत होते हैं। कैसे? होटलों के स्विमिंग पूलों में। हाँ, तो आप फॉरेनर्स के लिए जाते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम फॉरनर नहीं, फॉर्मादा जाते हैं। नर तो स्विमिंग पूल के चारों तरफ बैठे रहते हैं, वो भी आपके यहाँ, जिन बेचारों को तैरना भी नहीं आता। सारा दिन धूप में सूट पहने हुए स्विमिंग पूल में देखते रहते हैं। अपने अगले मेहमान को बुलाने से पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। जी, इरशाद। हमने सुना था कि पानी शफाफ होता है, मगर आप जरा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। आप ही के शहर में मेरा रंग ऐसा है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैं बगैर उबले हुए बैठा हूं। हाय हाय तौबा, इस वक्त लोग इसे उबालते हैं, मजलूम पे मुझे बहुत तरस आता है। मुझे मालूम नहीं था कि आप दोनों में इतनी दोस्ती है। जी नहीं, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं। हम में तो सिर्फ फोन का रिश्ता है। फोन का रिश्ता? वो इस तरह कि अगर मैं चली जाऊं तो भी लोग फोन करते हैं, और अगर ये बंद हो जाए तो भी लोग फोन करते हैं। बस एक फोन ही हमारी जिंदगी में है। आप दोनों को ये जानकर खुशी होगी कि मेरे अगले मेहमान भी टेलीफोन है। तशरीफ ला रहे हैं टेलीफोन। अरे बिजली, आप? पानी भाई, क्या हाल है? ठीक है। ये आप शर्मिंदा क्यों हो रहे मियाँ? वो असल में हम इंगेज हो गए। कहाँ हुई है तुम्हारी इंगेजमेंट? टेलीफोन ऑपरेटर के साथ। यही वजह है मियाँ कि जब भी आपको फोन करो इंगेज ही मिलते हैं। कब हो रही है शादी? बस वो मेरी मंगेतर जरा बोलना कम कर दे तो मैं फौरन शादी कर लूँ। आपको मालूम है टेलीफोन कि हमारे यहाँ लोग सांप के बिल में हाथ डालते हुए नहीं डरते, मगर अगर टेलीफोन का बिल पड़ा रहेगा तो डर के हमारे हाथ नहीं लगाते। वाकई टेली, तुम्हारा बिल बहुत ज्यादा आता है। जबकि 30 दिन में से 24 दिन ये खराब रहते हैं, बाकी 6 दिन जब उठाओ अजीब और गरीब किस्म की आवाजें आती हैं, कहीं मिलाओ कहीं मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ डांट सुनने आया हूँ। मैं अपने चीफ इंजीनियर की एक बात नहीं सुनता, तो आप लोग क्या हैं? मियाँ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल बुरा मानने की बात है। अब अगर आपके पेट पे कोई उंगली रखकर सारा दिन घुमाए तो आपके माउथ पीस में से कैसी आवाजें निकलेंगी? 2 मिनट चैन से नहीं बैठने देते। ये टेलीफोन के बिल की बात कर रहे हैं? बिल की? बिल से मेरा क्या ताल्लुक? बातें करते हैं ये लोग, गालियां मुझे सुननी पड़ती हैं। अच्छा इंसाफ है। अरे ये तो मेरे और बिजली के बारे में भी कहा जाता है, मगर हम तो नाराज नहीं होते। हम तो नाराज नहीं होते क्योंकि आप लोगों की बात और है। आप लोग बातें सुन सुनकर ढीठ हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो टेली? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। गुसल खानों में आप बगैर बताए आ जाते हैं, और अब जिस घर में चाहे बगैर बताए चली जाती है बिजली बेगम। मुझे देखिए, शरीफ आदमियों की तरह पहले मैं घंटी बजाता हूँ, फिर आता हूँ। मैं पोल खोलूं तुम्हारी शराफत की? ज्यादा बकवास मत करो। मुझे किताब तुमने लिखी है उसके बारे में बताओ। किताब? वो कोई किताब है? कौन सी किताब? वही किताब जिसे पिछले हफ्ते तुम पढ़ते हुए पानी पानी हो गए थे।
अरे पानी पानी तो मैं यहाँ का हर रिसाला और हर डाइजेस्ट पढ़कर हो जाता हूँ। अनवर साहब मैं बताता हूँ, वो जो फोन पे हमारे यहाँ के नौजवान बात करते हैं ना, जाहिर है मुझे सुनना पड़ती है। जी जी। तो वो मैंने लिख के छपवा दी। यहाँ? जी नहीं, मैंने कोशिश की कि बाहर छप जाए, लेकिन बाहर का कोई प्रेस राजी नहीं हुआ, सारी दुनिया में कोई प्रेस राजी नहीं हुआ। फिर कहाँ छपाई आपने? यहाँ आपके ये प्रेस नहीं है आपके साथ, ये वो जहाँ 2-4 रिसाले छपते हैं। अच्छा। वो खुशी खुशी राजी हो गए। लोगों को आपसे बहुत शिकायतें हैं। मुझसे लोगों को बहुत सी शिकायतें हैं। जी जी। मुझे भी लोगों से बहुत सी शिकायतें हैं। आपको भला क्या शिकायतें हैं लोगों से? वो पिछले दिनों आपने मेरे बूथ नहीं लगवाए थे वो सड़क पर? जी जी। तो वहां फोन करने कोई नहीं आया। क्या बताऊं, बस मेरा बूथ ना खुलवाया आप। ठीक किया, तुम भी तो उनको कभी सही हालत में नहीं मिले और उनकी चवन्नियां खा खा कर लखपति हो गया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं टेली, वाकई आपको लोगों से सही शिकायतें हैं। मेरे अगले मेहमान भी एक ऐसे हैं जिनको लोगों से बहुत शिकायतें हैं। तशरीफ ला रहे हैं गटर के ढक्कन। वो गटर के ढक्कन का है मियां? अरे साहब सब ढूंढ रहे हैं, शायद कोई ले गया है। ले गया। तो आप जाएं। यही शिकायत थी बेचारे को कि लोग उनको ले जाते थे। मेरी आज की आखिरी मेहमान हैं सड़क। बहुत शिकायतें हैं उनको हर एक से। तो आइए उनसे शिकायतें सुनते हैं। तशरीफ ला रही हैं सड़क। अरे ये कौन सी सड़क है? तुम पहचानोगे मुझे बीबी? मैं खुद आज पहली मर्तबा तुम्हें देख रही हूँ। आप पहचानती हैं इन तीनों को? तुम पहचानने की बात कर रहे हो अनवर मियां? अरे इन तीनों कमबख्तों ने तो मेरे कलेजे को छन्नी कर दिया। आज तक आराम से नहीं बैठी। सही कह रही हैं आप, क्योंकि आपकी हालत वाकई बहुत बुरी हो गई। हालत बुरी इस वजह से हुई है कि मेरी तरफ कोई बड़ा घर नहीं आता, मेरी तरफ कोई बड़ा अफसर नहीं रहता, मेरी तरफ बेगमात शॉपिंग करने नहीं आती, बड़े लोगों की सवारियां मेरी तरफ से नहीं गुजरती। ये झंडा कैसा है आपके हाथ में? ये झंडा मैंने नहीं, शेरशाह ने। सॉरी, अरे कमबख्त शेरशाह सूरी ने लगवाया था। शेरशाह सूरी ने? ये जब भी आपकी हालत ये घोड़ों की वजह से हो गई है। अरे तो तुम्हारा कहीं का कमबख्त मारा। आपने केडीए से शिकायत की? एक दफा की थी शिकायत। फिर कुछ हुआ? अरे कमबख्त और तोड़ गए, न जाने कौन से खजाने दफन है तुम्हारे शहर की सड़कों में। अरे पीर को बिजली वाले तोड़ते हैं, मंगल को बंद कर जाते हैं। बुध को पानी वाले तोड़ते हैं, जुमेरात को बंद कर जाते हैं। जुमे को टेलीफोन वाले तोड़ते हैं, बंद करना भूल जाते हैं। आपने फिर किसी बल्दियाती अफसर से शिकायत की? क्या नाम लिया आपने? बल्दियाती अफसर? जी जी जी। एक साहब थे, मेरे पड़ोस वाले घर में रहते थे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले उनका सिर्फ एक नारा था कि अगर आप लोगों ने मुझे चुन लिया तो सबसे पहले ये सड़क बनवाऊंगा, यहाँ बिजली लगवाऊंगा, यहाँ पानी आया करेगा। फिर क्या हुआ? अबे वो जीत गए। तो कुछ किया उन्होंने? हाँ, ये लो बहुत कुछ किया। क्या? भाई डिफेंस में 1000 गज का घर बनवाया और मोहल्ला छोड़ गए। सही किया, क्योंकि आजकल हम लोग एडवांस कर रहे हैं। आपका मोहल्ला छोड़ के डिफेंस चले गए। एडवांस तो खैर आपके यहाँ की बिजली ने भी बहुत किया है। पहले तो मेरे तारों में उलझ के सिर्फ पतंगे और कौवे मरा करते थे, मगर माशाल्लाह आजकल तो बच्चे और तालिब इल्म खूब। कॉलोनी से सोसाइटी का फोन तो मिलता नहीं है और मुझे सारी दुनिया से मिला रहे। कहते हैं 0 घुमाओ और अमेरिका बात कर लो, हालांकि मेरा 0 6 दिन नहीं मिलता। अब पता नहीं अमेरिका कब मिलेगा। अरे आप कहाँ से आ गए भैया? साहब ये बिजली बीबी का फोन आया है। क्या मुसीबत! क्या हो गया? एक अखबार के सहाफा ने उनके यहाँ की बिजली चली गई है, मुझे जाना होगा। क्या करती हैं? शाम के अखबार में टीवी पर तबसरा करती हैं। कुछ पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी का तो पता नहीं, अलबत्ता लिखी जरूर होंगी। क्यों क्या लिखती हैं? मैं चलूँगा। थोड़ी देर और बैठे। अरे ये मुझे देख के क्यों ठहरेंगी? जी हाँ, ये भी आपने ठीक ही कहा। आपको देखकर मैं क्यों ठहरने लगी सड़क बुआ? मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।